हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। Start. The present appeal directs challenge against concurrent findings recorded by the courts whereby suit for declaration and mandatory injunction filed by the respondent plaintiff was decreed by the trial court wide judgment and decree dated 3/2/1993 passed by the then additional senior sub-judge Pahova that came to be affirmed in appeal by the district judge Kurukshetra wide judgment and decree dated 9/5/1994 full stop para. The bone of contention in the present suit is a passage measuring 20 karams in length and 2 karams in width full stop. The case of the respondent plaintiff is that he purchased land measuring 8 canal comprised in Khewat number 5/9 rectangle number 6 Killa number 7 wide sale deed dated 26/9/1984 from one Hakam Singh along with aforesaid passage in Killa number 6/2 of rectangle number 6 to approach Killa number 7 from main passage full stop. It is further averred that this passage was reserved by Hakam Singh while he sold a part of his property comprised in rectangle number 6 Killa number 4 6/2 and rectangle number 5 Killa number 1 to 10 to the appellant's defendants, and the relevant entry to this effect is depicted in sale deed dated 3/1/1978 executed by Hakam Singh in favor of appellant's defendants full stop. The aforesaid passage was in existence in the year 1985 and remained in existence up to 25/5/1989 full stop. The appellants had cultivated the aforesaid passage on 23/5/1989 full stop para. The appellant's defendants filed the written statement and raised preliminary objections inter alia that the suit is not maintainable in the present form. Plaintiff has no cause of action and locus standi to file the suit. The plaintiff has concealed the true and material facts, and the civil court has got no jurisdiction to entertain the suit full stop on merits. All material averments with regard to existence of a passage in Killa number 6/2 or a passage having been left by Hakam Singh in the said Khasra number are denied full stop para. The respondent plaintiff filed replication and controverted the allegations raised in the written statement while reasserting his stand taken in the plaint full stop para. The controversy between the parties led to framing of issues reproduced in para 6 of the judgment of trial court full stop. The parties were permitted to adduce evidence in support of their rival contentions, having heard counsel for the parties in the light of materials on record,
The trial court, on the basis of findings on issue number 1, accepted claim of the respondent plaintiff and decreed the suit by directing the appellant's defendants to restore the passage having length of 20 karmas and width of 2 karams in Kila number 6/2 towards southern side, and mutation bearing number 244 was held to be null and void to this extent for non-mentioning of this passage therein, full stop, para. As has been noticed herein before, appellant's defendants turned out to be unsuccessful before the first appellate court, as appeal preferred by them was dismissed and findings recorded by the trial court were affirmed, full stop, over. तो फ्रेंड्स ये 90 एग्जैक्ट की स्पीड में है, ठीक है, हो गया ये डिक्टेशन आपका। और इसमें नंबर ज़्यादा आए हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये स्पीड क्या कहते हैं तेज़ हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे मिसलेनियस टाइप के मैटर भी होने चाहिए जिसमें नंबर वंबर कुछ थोड़ा आप लोग उससे उसको झेलें, है ना। नंबर ज़रूरी होते हैं, नंबर में भी हाथ चलना चाहिए। और ये करम्स, ये शायद हरियाणा पंजाब की तरफ ज़मीन की मेजरमेंट के ये टर्म्स हैं, ठीक है। करम्स और कैनल, जैसे अपने यहाँ मारलाज होता है ना, बीघा, बिस्वास, बिस्वांसी, वैसे वहाँ पे ये करम्स वगैरह होता है, ठीक है। तो चलिए फिर कर्म्स कैसे बनेगा, सिंपल है, अबव द लाइन KRM और सर्किल, ठीक है, ये कर्म्स हो गया। और क्या है, एक नाम अजीब सा आया था, पेहोवा, ठीक है। तो पेहोवा है, ऐसे नाम में देखिए अगर इस टाइप का कुछ अचानक से नाम आता है तो भी जो है आप मतलब रिलेट हो सकता है कर लें, लेकिन जो है परेशान इसमें मत होइएगा, नहीं तो पता चला इसको बनाने के चक्कर में बाकी सब छोड़ दीजिए, ठीक है। वैसे पेहोवा बनेगा P और V, केवल V का स्ट्रोक बना दीजिए, ठीक है, और V में दैट की वॉवल आफ्टर में। पेहोवा है ये, हमने पहोवा शायद बोला हुआ था, तो वो अबव द लाइन ऐसे ही बनेगा, P और V और डबल डैश, ठीक है। और पवा से आप समझ जाओगे पेहोवा है, ठीक है, क्योंकि H की डॉट भी आप लगा दीजिएगा, डबल डॉट P के आफ्टर में सेकंड प्लेस पे। और कुरुक्षेत्र है तो KR की ऑन द लाइन KR की डबलिंग कर दीजिए और उसमें सर्किल और TR निकाल दीजिए, सर्किल और फिर T में R का हुक, ठीक है। KR की डबलिंग से कुरुक और S सर्किल और TR से क्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र हो जाएगा। और खेवट पूरा आपका बनेगा, के बनाइए दो तरीके से, के बनेगा ऑन द लाइन, फिर वे का स्ट्रोक, फिर टी, ये खेवट हो गया, और उसी में टी में नंबर जोड़ दीजिए, नंबर का ग्राम लॉग, तो वो खेवट नंबर हो जाएगा। के को काट दीजिए ख के लिए। और एक तरीका है के, वी का स्ट्रोक, और टी वो थोड़ा नीचे चला जाएगा, इसीलिए ये वे का स्ट्रोक ज़्यादा सही लगेगा। अब आप लोग समझ लीजिए कैसे होगा। किला तो थ्रो द लाइन के, अपवर्ड एल बनेगा, ठीक है, अपवर्ड एल मतलब लाइन के ऊपर जाएगा, और उसी में नंबर जोड़ दीजिए। नंबर जिसके साथ भी आए उसको कोशिश करिए जोड़ दीजिए, ताकि पेन अलग से उठानी ना पड़े। हकम जो है क्या बनेगा, डाउनवर्ड H, के और M का स्ट्रोक, हकम। और सिंह तो जानते ही हैं आप, ये हो गए हकम सिंह। और कुछ है इसमें? और कुछ नहीं है। चलिए ये हो गया, अब चलते हैं कमेंट्स की ओर। देखिए प्रैक्टिस और SE और CE में बड़ा इसमें ज़्यादा कुछ अंतर तो है, खैर एक नाउन है और एक वर्ब है। SE वाला जो है वो वर्ब है और CE नाउन है। इसमें ब्रिटिश और UK वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ब्रिटिश और UK में इन दोनों किसी जगह पे इन दोनों एक ही वर्ड को वर्ब और नाउन की तरह यूज़ किया जाता है, और UK में शायद, और अमेरिका में दोनों को अलग अलग, ठीक है, या वाइस वर्सा होगा। लेकिन यहाँ पे आप वर्ब की तरीके इस्तेमाल, अगर टू के बाद आता है या फिर वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है तो SE लगेगा, प्रैक्टिस, ठीक है। और अगर नाउन के साथ आता है तो वो CE लगेगा, CE बनेगा, ठीक है। ये डिफरेंस है, बनेगा दोनों एक जैसा, ठीक है। और पास्ट टेंस के लिए काट दिया करिए।
और कुछ अजीब टाइप के लोग भी मैसेज कर देते हैं। अब उनको हम क्या समझाएं, ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं लगता। अगर सम नहीं जमता है तो जाओ दूसरे चैनल पे जाओ ना भाई, काहे इस पे चैनल पे हो, कोई अलग से इनविटेशन कार्ड थोड़ा छपवा दिए है। जमता है तो रहो, नहीं जमता है तो बाहर जाओ। तो प्रवीण कुमार जी, आपका सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट लुधियाना में हो गया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। स्टेनो ग्रेड 3 में हुआ है आपका, बहुत बहुत अच्छी बात है ये। और फ्रस्ट्रेट बिल्कुल मत होइए क्योंकि हम भी गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम कर चुके हैं। तो क्या कहते हैं कि 6 महीने का है, लेकिन वो निकालेंगे नहीं आपको कभी भी, ठीक है। इतना आप जाने रखिए, क्योंकि पंजाब में वैसे भी स्टेनो की कमी है, काम पूरा हो नहीं पाता है, तो वो लोग किसी भी एडहॉक वाले बंदे को, कॉन्ट्रैक्ट वाले बंदे को निकाल नहीं सकते। लेकिन आप अपनी पढ़ाई पे इफेक्ट मत आने दीजिएगा, आप काम करते रहो, आपको 2-4 महीने में खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपकी पढ़ाई काम करते हुए हो रही है कि नहीं। अगर कंडीशन ठीक है तो फिर ज्वाइन करिए। देखिए, ज्वाइन हर जॉब करनी चाहिए, इसलिए तो क्योंकि कॉन्फिडेंस उससे आता है ना। आपका एग्ज़ाम निकला है, किसी ने खैरात में तो आपको दी नहीं है, आपने कंपटीशन जीता है, कई लोगों के बीच में कंपटीशन दिया है, तब आपको मिला है। तो उसको एक्सेप्ट करिए, ज्वाइन करिए, फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए। ये सारा डिसीजन आपका होता है, ठीक है, आपका होगा। लेकिन पढ़ाई को डिसबैलेंस मत होने दीजिएगा, क्योंकि हमको भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमने भी नौकरी छोड़ दी थी, ठीक है। हमने आपको अपना तजुर्बा बताया है। अच्छा, इंक्वायरी, अच्छा जो हमने मैटर दिया है उसमें आई और ई में आप कंफ्यूज्ड है, तो देखिए ऐसा है कि स्टेनो आप और हम जैसे लोग ही बनते हैं, ठीक है। अगर किस्मत से जल्दी कोई बन जाता है, कोई लेट बनता है। जो लेट बनेगा उसको सारे वर्ड्स की नॉलेज रहती है, और जो जल्दी बनता है वो सारे वर्ड्स नहीं लिख पाता है। तो इसमें गलती किसी की नहीं है। कोई भी जो शॉर्ट स्टेनो जाता है जॉब करने के लिए, तो उसको अगर इसके बीच में डिफरेंस नहीं पता है, तो वो जो उसको पता है वही लिख देगा, और वही जजमेंट छप जाती है, जिसे बाद में बच्चे पढ़ते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप जैसे, हम लोग जैसे, ठीक है। तो उस केस में हम लोग ये कहते हैं कि हमने ई से इंक्वायरी देखा है वो सही है, या आई से इंक्वायरी लिखा है वो सही है। तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो। ई इनफॉर्मल इंक्वायरी के लिए यूज़ होता है, और आई ऑफिशियल इंक्वायरी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बाकी अगर इसमें ऐसा छपा हुआ है तो अब इसको गलत भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि भाई अब किसी ने लिखा होगा, वो अगर चैनल देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि हम जॉब पा गए हैं और हमको ये गलत बता रहे हैं। तो बाकी अब आप समझ जाओ, नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि कहाँ इसका यूज़ होता है। ऑफिशियल इंक्वायरी के लिए आई एन इस्तेमाल होता है, ठीक है। और 4 मिस्टेक आप आई है, बहुत अच्छी मिस्टेक है, अच्छा लगा जान के। ऐसे ही करते रहिए, अपने आप को इसी पोजीशन पे बनाए रहिए। कॉन्ग्रेट्स और वेलकम बहुत ज़्यादा आप सबको जिन्होंने थैंक यू कहा हुआ है। और मिस्टेक जिनकी बहुत ज़्यादा आ रही है, 840 में 150 वर्ड की मिस्टेक आ रही है, तो परेशान ना हो, वो एक प्रोसेस होता है, बिना उस प्रोसेस के निकले हुए शॉर्ट हैंड इम्प्रूव नहीं होती है, ठीक है। तो वो हो जाएगा, करते रहिए। अपने मतलब फ्रस्ट्रेट होके बीच में ब्रेक मत कीजिएगा, कहने का मतलब इसको रेगुलर करने की ज़रूरत है। तो आप शॉर्ट हैंड रेगुलर करते रहिए, आपकी मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। ये आप अभी शायद आपने ज़्यादा टाइम नहीं दिया है इसमें, जिनकी 150 मिस्टेक्स आ रही हैं 840 में, तो परेशान मत होइए, सब हो जाएगा। और अगर दिक्कत आ रही है तो हम आपको कमेंट में अपना ईमेल दे देंगे, आप एक बार बात कर लीजिएगा हमसे, नंबर वहाँ पे हम आपको दे देंगे, तो फिर हम आपको कुछ बता देंगे, आप उसके हिसाब से कीजिएगा। तो थैंक्स लॉट। डिक्टेशन अच्छा लगा आपको, थैंक यू सो मच। और अच्छा, एक चीज़ और, क्या था, ओ की वॉवल, देखिए एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होगी। एग्ज़ाम 80 का है तो मैक्सिमम 82-83 तक जाएगा, 80 to 83, ठीक है। 90 की स्पीड में डिक्टेशन नहीं देंगे वो लोग, ऐसा होता नहीं है कभी। तो आप लोग परेशान मत होइए, ये डिक्टेशन आपकी सफिशियंट है, 90 की स्पीड से अबव ही हम देते हैं, ठीक है। चलिए फिर, ये आपके ये तो हो गए हैं डिक्टेशंस, सेशन पूरा कंप्लीट हो गया। जो भी कमेंट्स हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, अच्छे बुरे जो भी हो, ठीक हो, हम सब के लिए राज़ी हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, और ढंग से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले डिक्टेशन में। थैंक यू।